This chapter we are going to study the step 6 of our research process. Step 6 basically is about the how to design our research. देखिए, जब आपने अपना ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, आपको पता लग गया through observation or through any source that there is some problem existing in your organization, and you have identified that this is my broad problem. After that, you go for preliminary data gathering. In data gathering, you do interviewing of the relevant employees, relevant people. Then you collect the literature, and after that, you are in a position that you can define your problem, you can state your problem. Once you have stated your problem, now this is the time to develop the logical and theoretical relationship between the variables that you have identified, that you had identified during preliminary data gathering. Once you made a theoretical framework, now this is the time that you are going to generate your hypothesis. Hypotheses are basically the statements of relationships that you have built during theoretical framework. Now, your research process up to the step 5 is related to the work regarding research. Now, this step will decide now you what you have to do further about 7, 8, 9th and further steps, right? uh, this is just like that. We can differentiate our research into two parts. एक हम हिस्से को 5 स्टेप्स कह देते हैं, एक हिस्से को हम 7, 8 और इससे ऑनवर्ड स्टेप्स कह देते हैं. तो ये जो 6 स्टेप होता है, बेसिकली दिस स्टेप डिसाइड्स दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्दर इन दिस स्टडी, दैट व्हाट वी हैव टू डू इन द स्टडी. ठीक है, कि ये 5 स्टेप्स तो हो गए, दैट आर वेरी कॉमन दैट एवरी रिसर्चर परफॉर्म दीज स्टेप्स. Every researcher who is doing research perform these steps, but the step 6 decides that what the design would be for your research, and what are the future things that you are going to do in your research. So step 6 is a decisive step. See, step 6 is we are going to design our research. So what we are going to design, we are going to design the 6 things, right? These are the 6 things that we do in the step 6, that we do in the step 6 of the research process. The step 6 is research design, components of research design. So there are 6 components of research design. Pehla hai purpose of the study, second is types of investigation, extent of researcher interference, स्टडी सेटिंग, यूनिट ऑफ एनालिसिस, टाइम होराइजन. ये 6 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जी. इनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिफाइन करता हूं. दिस इज वेरी इजियर कॉन्सेप्ट. पहला देखिए जरा, पहला कंपोनेंट क्या है? पर्पस ऑफ द स्टडी. पर्पस ऑफ द स्टडी मीन द स्टडी that we are going to conduct, the research that we are going to conduct, what is the purpose? What are the aims that we are going to achieve after this research? What is the purpose? Why we are doing this research? Why we are feeling the need of doing this research? So इसके अंदर हम purpose define करेंगे. Studies may be either exploratory, descriptive, right? एक्सप्लोरेटरी भी हो सकती हैं, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती हैं. अब मुझे ये याद नहीं करवाना चाहिए कि एक्सप्लोरेटरी क्या होती हैं और डिस्क्रिप्टिव क्या होती हैं. पहले चैप्टर में हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है इनके मुतालिक. द केस स्टडी विच इज एन एग्जामिनेशन ऑफ स्टडीज डन इन अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन. ओके, पर्पस ऑफ द स्टडी क्या होता है?
द नेचर ऑफ द स्टडी, वेदर इट इज एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हम ये डिफाइन करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं इस रिसर्च के अंदर। और थोड़ा सा रिव्यू हम ले लेते हैं दोबारा कि एक्सप्लोरेटरी स्टडी क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टडी क्या होती है, और केस स्टडी एनालिसिस क्या होता है। तो हम पहले स्टेप में डिफाइन करते हैं कि हमारी स्टडी का पर्पस क्या है, यानी हम कौन सी स्टडी करने जा रहे हैं। कौन सी स्टडी से मुराद कि एक्सप्लोरेटरी है। एक्सप्लोरेटरी स्टडी अगर आपको याद हो, जो कि हम बॉडी ऑफ नॉलेज में इजाफे के लिए, किसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, किसी चीज को फर्दर जानने के लिए, पहले से डिफाइंड चीज को फर्दर जानने के लिए, या एक नई चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, या बॉडी ऑफ नॉलेज में इजाफा करने के लिए जब हम कोई स्टडी करते हैं तो एक्सप्लोरेटरी स्टडी कहलाती है। और एक्सप्लोरेटरी स्टडी को हम क्या कहेंगे, ये पर्पस ऑफ द स्टडी है। और ये पर्पस ऑफ द स्टडी हम कहां डिफाइन करते हैं, रिसर्च डिजाइन के अंदर, कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टडी। द पर्पस ऑफ द स्टडी इज टू एक्सप्लोरेटरी, आइदर डिस्क्रिप्टिव और व्हाटएवर। सो एक्सप्लोरेटरी स्टडी, यू नो, यू आर फेमिलियर विद दिस। डिस्क्रिप्टिव स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हमने क्या पढ़ा था। फॉर इंस्टेंस, अ स्टडी ऑफ अ क्लास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ members who are in their senior and junior, sex composition, age grouping, number of semesters left until graduation, and number of business courses taken can be considered as descriptive in nature. Quite frequently, descriptive studies are undertaken in the organizations to learn about and describe the characteristics of a group of employees. Means descriptive studies are done to get the description, to get the details, to get the understanding and characteristics of the phenomena that is under study. जिस प्रॉब्लम को, जिस इशू को हम स्टडी कर रहे होते हैं, उसके मुतल्लिक, उसके करैक्टरिस्टिक्स के मुतल्लिक, उसके करैक्टरिस्टिक्स के मुतल्लिक मजीद जानना इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टडी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये होती है कि जिस स्टडी में हम हाइपोथेसिस टेस्ट भी करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ स्टडीज होती हैं जो सिर्फ एक्सप्लोरेटरी लेवल तक रहती हैं, कुछ स्टडीज होती हैं जो मजीद डिस्क्रिप्शन शामिल कर देती हैं, कुछ स्टडीज होती हैं जो हाइपोथेसिस भी टेस्ट करती हैं। यानी जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि वी बिल्ड सम रिलेशनशिप एंड आफ्टर बिल्डिंग द रिलेशनशिप वी गो फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। We develop the relationship between the variables in the theoretical framework, and after building the relationship we go for the hypothesis building, और आफ्टर हाइपोथेसिस बिल्डिंग वी गो फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके बाद कुछ स्टडीज होती हैं केस स्टडी एनालिसिस। केस स्टडी एनालिसिस जो होते हैं वो डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है, किसी पहले से बाज़ एग्जिस्टिंग फिनोमिना को स्टडी कर लिया जाता है, या कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस में किसी स्टडी को जो है वो कर लिया जाता है। वी नोटेड अर्लियर दैट केस स्टडीज as a problem solving techniques are not frequently resorted to in an organization because finding the same type of problem in other comparable setting is difficult due to reluctance of companies to reveal their problem। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक प्रॉब्लम आपने एक कंपनी में स्टडी की, बिल्कुल सेम उसी तरह की प्रॉब्लम किसी दूसरी कंपनी में भी हुई तो आपने सेम वही सॉल्यूशन और चीजें वहां पर अप्लाई कर दी। लेकिन ये वाली स्टडीज जरा कम ही होती हैं। उसकी रीजन ये है कि एक कंपनी जो अपना स्टडी का एनालिसिस कर लेती है वो कम ही किसी के साथ अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, तो ये स्टडी जरा कम ही होती है। हम ज्यादातर बिजनेस लेवल में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ही बिलीव ज्यादा करते हैं। अच्छा जी, पहला आ गया कि आपने बताना है कि आप ये जो स्टडी करेंगे ये कौन सी स्टडी होगी। यानी यू हैव टू डिसाइड। हाइपोथेसिस जनरेट करने के बाद आपने पहला काम जो है वो डिसाइड करना है कि आपकी स्टडी कौन सी होगी। नाउ टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम पढ़ के आए हैं कि हम कॉजल इन्वेस्टिगेशन करेंगे या हम कोरिलेशन इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके मुतालिक भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि कॉजल होगी या कोरिलेशन होगी। कॉजल ये थी कि जब एक का इंपैक्ट दूसरी पर आता है, एक का इन्फ्लुएंस दूसरी पर आता है। और कोरिलेशन कौन सी स्टडी थी, जिसमें हम सिर्फ एसोसिएशन पढ़ते हैं कि किसी का किसी के साथ ताल्लुक कितना है, क्या है, कैसा है ताल्लुक। हम सिर्फ एसोसिएशन के साथ एसोसिएशन किससे पढ़ते हैं। और इसमें हमने देखा था कि ये कॉजल और कोरिलेशन डायरेक्शनल भी हो सकती है और नॉन डायरेक्शनल भी हो सकती है।
पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है और बगैर पॉजिटिव और नेगेटिव के भी हो सकती है। तो इस पे हम बात कर चुके हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि हम किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, कॉजल या कोरिलेशनल। इसमें एग्जांपल ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया, इसको मजीद क्या डिस्कस करना। इसके बाद आता है जी एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर्स इन्फ्लुएंस। एक्सटेंट ऑफ रिसर्चर इन्फ्लुएंस का मतलब by the researcher with the normal flow of work at the workplace has a direct bearing on whether the study undertaken is casual or correlation। देखें, कुछ स्टडीज होती हैं जो कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है वो कैरी ऑन करते हैं, यानी तवज्जो चाहिए थोड़ी सी। देखिए, एक स्टडी है जिसको हमने ओपन रखा हुआ है, जिसमें हमने अपनी किसी किस्म की मर्जी शामिल नहीं की, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप, हम ये नहीं कह रहे कि इनके दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इनके दरमियान रिलेशनशिप है, इनके दरमियान एसोसिएशन है, ठीक है। तो जब ये भी हमने डिसाइड करना है कि हम इस स्टडी में कितना इंटरफेरेंस करने जा रहे हैं, तवज्जो, a correlational study is conducted in the natural setting, natural environment, whereas cause and effect या causal study जो है वो हमारे ऊपर होता है कि हम कैसे जो है वो उसको लेके चलें। इन अदर वर्ड्स, रिसर्चर डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, रिसर्चर जानबूझकर वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप चेंज करता है। यानी मैं लिख दूं कि इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मैं कह दूं कि मैं इन्हें इनका नेगेटिव रिलेशनशिप ही चेक करना है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी इंटरफेरेंस ज्यादा कर रहा हूं। अगर मैं कहूं कि इनके दरमियान रिलेशनशिप है एंड वी आर गोइंग टू चेक द रिलेशनशिप, आइदर इट वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये क्या है, ये मेरी इंटरफेरेंस कम है। मैंने नेचुरल एनवायरनमेंट पे, मैंने कुदरत पे छोड़ दिया है कि क्या रिलेशनशिप आता है, मैंने अपने डेटा पे छोड़ दिया है कि उसके बाद क्या रिलेशनशिप आता है। तो इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। तीन चीजें हो गई। पर्पस में हमने देखा कि हम डिफाइन करेंगे कि हमारी एक्सप्लोरेटरी स्टडी है, एक्सप्लेनेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है या कॉज एंड इफेक्ट वाली है। फिर हम ये बताएंगे कि टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम कौन सी करने जा रहे हैं। टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन से मुराद कि हम सिंपल कोरिलेशनल स्टडी कर रहे हैं या हम कॉजल कर रहे हैं, और अगर हम कोरिलेशन कर रहे हैं या कॉजल कर रहे हैं तो उसमें हमारा इंटरफेरेंस कितना है। अगर तो हम जानबूझकर उसमें रिलेशनशिप्स पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं तो हमारी इंटरफेरेंस ज्यादा है, अगर हमने उसको ओपन छोड़ा हुआ है तो हमारी इंटरफेरेंस कम है। चौथी चीज जो हम रिसर्च डिजाइन में करते हैं वो है स्टडी सेटिंग। स्टडी सेटिंग, आमतौर पर जो वर्ड यूज होता है स्टडी सेटिंग के लिए वो होता है कंट्राइव्ड सेटिंग और नॉन कंट्राइव्ड सेटिंग, यानी लेबोरेटरी सेटिंग और नॉन लेबोरेटरी सेटिंग। यानी जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो लेबोरेटरी में कर रहे हैं या नॉन लेबोरेटरी कर रहे हैं। तो जो स्टडी हम लेबोरेटरी में कर रहे होते हैं वो हमारे अंडर कंट्रोल होती है। आपने कभी बचपन में जब आप मैट्रिक में या एफएससी में आप एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे तो रूम टेम्परेचर आपके हाथ में होता था, आप उसको कंट्रोल कर लेते थे, ठीक है। तो लेबोरेटरी के अंदर रूम टेम्परेचर हमने कंट्रोल किया होता है, तो लेबोरेटरी सेटिंग जो होती है वो हमारे हाथ में होती है। लेकिन जब हम लेबोरेटरी से बाहर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। सेम इसी तरह स्टडी सेटिंग जो है वो कंट्राइव्ड होती है या नॉन कंट्राइव्ड होती है। Organizational research can be done in natural environment where work proceeds normally. This is called non-contrived, ठीक है। या इन आर्टिफिशियल सेटिंग, आर्टिफिशियल सेटिंग कौन सी होती है, कंट्राइव्ड सेटिंग। कंट्राइव्ड सेटिंग कौन सी होती है, लेबोरेटरी सेटिंग, यानी जिसमें हमने बहुत सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल रखा होता है। इसकी एग्जांपल ऐसा ही है कि जैसे पिछली हुकूमत जो थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वो दावे करती है कि हमने जीडीपी बहुत अच्छा रखा हुआ था, वो दावे करती है कि हमने जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत ज्यादा थी, वो दावे करती है कि हमने जो मईशत थी उसको संभाल के रखा हुआ था। लेकिन जो अक्लमंद इंसान है उसको फौरन समझ आ जाएगी कि ये सारी चीजें हमें संभली हुई क्यों नजर आ रही थी, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें लेबोरेटरी में रखी हुई थी। लेबोरेटरी से क्या मुराद है, लेबोरेटरी से मुराद ये है कि उन्होंने सारा कुछ अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, यानी कर्जों की भरमार थी, सर्कुलर डेट्स की भरमार थी, हमारे ऊपर सूद बेशुमार था, हम बुरी तरह से दिवालिया हो चुके थे, लेकिन जो दुनिया के सामने फिगर्स रखे हुए थे
वो इस तरह के कंट्रोल्ड रखे हुए थे कि जो नजर आ रहा था कि दैट इज वेरी गुड फिगर्स। लेकिन जब ये दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो जब उसको नेचुरल सेटिंग पे लेके आती है तो सारी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं, और कम अकल लोग ये समझते हैं कि ये सारा कुछ इनकी वजह से हो रहा है। हालांकि वो इनकी वजह से नहीं हो रहा, वो पिछले लोगों की वजह से हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा। अभी इनको 2 साल हो गए हैं, अब इनको अपनी लेबोरेटरी सेटिंग और नॉन लेबोरेटरी सेटिंग में समझ आ जानी चाहिए। इनको भी समझ आ जाना चाहिए कि हमने इनको कैसे मैनिपुलेट करना है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं उनको ज्यादा नेचुरल छोड़ दें तो वो नुकसान भी पहुंचाती है। जैसे आप देखें, अगर ये जो पीआईए वाला इशू है, फेक डिग्रीज वाला इशू है, अब इस डिग्री इशू के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हमारी बदनामी हो रही है। इसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था अगर हम इसको लेबोरेटरी सेटिंग में करते। हमने इसको लेबोरेटरी सेटिंग में नहीं मैनेज किया, हमने इसको नेचुरल नॉर्मल इन्वायरमेंट में छोड़ दिया। तो देखें इश्यूज कितनी जल्दी फैल गया, पूरी दुनिया तक पहुंच गई, और बहुत सारे लोगों ने पीआईए पर जो है वो अपने मुल्क में आने में पाबंदी लगा दी है। तो खैर, तो ये सेटिंग और कंट्राइव्ड और नॉन कंट्राइव्ड सेटिंग का फर्क होता है। इसी तरह हम अपनी स्टडी में जो है वो डिसाइड करते हैं कि हम अपनी स्टडी जो है वो लेबोरेटरी सेटिंग में करेंगे, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करेंगे, बहुत सारी चीजों को अपने हाथ में रख के करेंगे, या नेचुरली फ्लो चलने देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है हमारे पास यूनिट ऑफ एनालिसिस। यूनिट ऑफ एनालिसिस ये होता है कि जिससे आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं या जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, द द यू कैन से कि जो हमारा मेन प्रायोरिटी का एलिमेंट होता है वो हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस होता है। वो बंदा या वो बंदी या वो ग्रुप जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, वो हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस होता है। यानी अगर हम एक एम्प्लॉय से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो वो एक एम्प्लॉय हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस है। अगर हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए एक यूनिट ऑफ एनालिसिस है। ठीक है, जैसे आप जो है वो कोई टाइम मेजर कर रहे हैं, तो टाइम मेजर करने में आप सेकंड्स में भी मेजर कर सकते हैं, आप मिनट्स में भी मेजर कर सकते हैं, आप घंटों में भी मेजर कर सकते हैं, तो डिपेंड्स ऑन टू यू। तो इसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ एनालिसिस। तो यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल कौन होता है? अकेला बंदा। अकेले बंदे से क्या मुराद है? यूनिट ऑफ एनालिसिस रेफर्स टू द लेवल ऑफ एग्रीगेशन ऑफ द डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट। ओके, फॉर इंस्टेंस the problem stated focuses on how to raise the motivational level of employees। अगर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें हमने मोटिवेशनल लेवल जो है वो एम्प्लॉइज का इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब हम एम्प्लॉइज को स्टडी करेंगे। अब हम एम्प्लॉइज को स्टडी कर रहे हैं तो एम्प्लॉइज हमारे क्या हैं? यूनिट ऑफ एनालिसिस। एक सिंगल एम्प्लॉय, एक सिंगल इंडिविजुअल एम्प्लॉय हमारा क्या होगा? यूनिट ऑफ एनालिसिस। जिस अकेले को हम पढ़ने जा रहे हैं, अकेले अकेले को पढ़ने जा रहे हैं, दोज एवरी इंडिविजुअल इज कॉल्ड यूनिट ऑफ एनालिसिस। इसके बाद डायड्स। डायड्स वो होते हैं जब इंडिविजुअल नहीं होता, दो लोग होते हैं, यानी हम दो लोगों के ग्रुप को स्टडी करते हैं, दो दो लोगों का ग्रुप बना देते हैं। जैसे आमतौर पर हमने किसी फैमिली को स्टडी करना है, हम मियाँ बीवी को स्टडी कर लेते हैं, तो मियाँ बीवी का ग्रुप इज डायड। हम दो दोस्तों को स्टडी कर रहे हैं, वो दो दोस्त मिलके हमारा एक यूनिट होगा। समझ आ रही है? इस केस में एक बंदा हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस है, इस केस में दो बंदे हमारे यूनिट ऑफ एनालिसिस है एक ही, गिनेंगे हम एक ही, लेकिन वो दो लोगों से रिस्पॉन्स लेंगे तो वो हमारा एक रिस्पॉन्स बनेगा। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है ग्रुप्स। तो ग्रुप्स तो आपको पता ही है कि हम ग्रुप से, यानी हम जो है वो इवनिंग ग्रुप से इकट्ठा कर लेते हैं, हम डेटा वीकेंड ग्रुप से इकट्ठा कर लेते हैं, हम मॉर्निंग ग्रुप से इकट्ठा कर लेते हैं। तो यह अब हम ग्रुप से कर रहे हैं तो ये हमारा ग्रुप डेटा होगा। ठीक है, अब इसमें हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है? ग्रुप। हमारे जितने भी एनालिसिस होंगे वो ग्रुप बेस्ड होंगे। पिछली एग्जांपल्स में जितना भी यूनिट एनालिसिस हमने किए थे वो इंडिविजुअल बेस्ड थे, फिर हमने डायड लिया, अब हमारे यूनिट ऑफ एनालिसिस जो थे वो डायड बेस्ड थे। अब जब हम ग्रुप से डेटा कटे, हम करते हैं जी एमबीए मॉर्निंग का एक ग्रुप, हम कहते हैं एमबीए इवनिंग का एक ग्रुप, हम कहते हैं एमबीए वीकेंड का एक ग्रुप, हम कहते हैं एमबीए संडे का एक ग्रुप, हम कहते हैं एमबीए इवनिंग का एक ग्रुप। तो अब ये ग्रुप्स हैं। अब हम इन ग्रुप से जो डेटा इकट्ठा करेंगे, अब हम एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का डेटा नहीं इकट्ठा करें, हम ग्रुप का डेटा करें, तो हम ग्रुप पर एनालिसिस करेंगे। तो वो अब हमारा एनालिसिस जो है वो ग्रुप एनालिसिस होगा। बट ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ स्टडी पे। नेचर ऑफ स्टडी जैसी होगी वैसा ही हम डेटा इकट्ठा करेंगे। जैसे यहां पे देखें, डायड के अंदर इफ द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग टू पर्संस इंटरेक्शन, देन सेवरल, कई दो पर्सन जो हैं वो डायड कहलाएंगे, कई दो पर्सन डायड कहलाएंगे। और इस केस में इफ the unit of analysis would be at the group level, in other words, even though may gather relevant data from all individuals,
बेशक हम इंडिविजुअल से डेटा इकट्ठा करेंगे, यानी हम जैसे आप ये समझ लें कि हमारे यहाँ, आपको पता है शायद, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, कि क्लास वैल्यूएशन होती है, टीचर की वैल्यूएशन होती है, ठीक है। तो टीचर की एवैल्यूएशन में आप एवैल्यूएशन, तो सपोज 10 स्टूडेंट है क्लास में, तो वो 10 के 10 एवैल्यूएशन कर रहे होते हैं टीचर की, लेकिन हम ओवरऑल जब उसको प्रेजेंट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये एमबीए इवनिंग की फलां टीचर के बारे में जो है वो एवैल्यूएशन है। समझ आ गई? तो अब वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एमबीए इवनिंग का ग्रुप। होप कि ये क्लियर है। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल, कि हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन से डेटा इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए एक यूनिट की हैसियत रखता है। यानी सपोज मैंने ना 5 यूनिवर्सिटीज से डेटा इकट्ठा करना है, तो मैं 5 यूनिवर्सिटीज इकट्ठी करता हूं और मैं 5 यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट बच्चों से डेटा इकट्ठा करता हूं, लेकिन वो एक यूनिवर्सिटी मेरे लिए एक यूनिट की हैसियत रखती है। बेशक उस यूनिवर्सिटी में मैंने 200 स्टूडेंट से डेटा इकट्ठा किया है, एक और यूनिवर्सिटी में मैंने 100 लोगों से डेटा इकट्ठा किया है, वो मेरे पास एक यूनिवर्सिटी जो है एक यूनिट ऑफ एनालिसिस कहलाएगा। यानी जब आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास यूनिट ऑफ एनालिसिस होता है। इसके बाद कल्चर्स, के जब हम एक कल्चर को स्टडी कर रहे हैं तो एक कंट्री, पूरी कंट्री का जो डेटा है, पूरी कंट्रीज के लोगों से डेटा जो इकट्ठा किया गया, या एक कल्चर से रेलिवेंट जो डेटा इकट्ठा किया गया है, वो पूरा एक कल्चर जो है वो क्या कहलाएगा? एक यूनिट ऑफ एनालिसिस कहलाएगा। यहां तक कोई क्वेश्चन? इसके बाद हमारा लास्ट जो छठा कंपोनेंट होता है रिसर्च डिजाइन में, वो है टाइम होराइजन। इस पे भी हम चैप्टर नंबर 1 में बात कर चुके हैं कि टाइम होराइजन क्या होता है, कि हमारी जो रिसर्च है वो टाइम के किस हिस्से में परफॉर्म की जाएगी, यानी क्या वो क्रॉस सेक्शनल होगी या वो लॉन्गिट्यूडनल होगी। फिर आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में हमने लॉन्गिट्यूडनल की भी डिफरेंट एग्जाम पढ़ी थी, जिसमें हमने पैनल डेटा पढ़ा था, जिसमें हमने टाइम सीरीज भी पढ़ा था, जिसमें हमने कोहोर्ट डेटा कलेक्शन भी पढ़ी थी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में हम ये सारी चीजें पढ़ के आए हैं। अच्छा, यहाँ पे हम दो मेन टाइप्स का बात करते हैं कि हम जो डेटा इकट्ठा करने जा रहे हैं वो क्रॉस सेक्शनल है या लॉन्गिट्यूडनल है। क्रॉस सेक्शनल ये होता है जो हम किसी एक वक्त पर वन शॉट, किसी एक शॉट में हम जो डेटा इकट्ठा करते हैं। मसलन मैंने एक डेटा इकट्ठा करना है, मैं 10 स्टूडेंट्स से इकट्ठा करता हूं, चाहे मैं 10 दिन में इकट्ठा करूं, चाहे मैं 10 महीनों में इकट्ठा करूं, लेकिन वो एक ही टाइम गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो रिसर्च की सेटिंग है वो ऐसी है कि इसके अंदर डेटा जो है वो एक टाइम का चाहिए। अब ये मेरी जो है वो नाहली है कि मैं डेटा एक दिन में इकट्ठा करूं या 10 दिनों में इकट्ठा करूं, लेकिन वो डेटा एक टाइम का डेटा ही कहलाएगा। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल डेटा ये होता है कि आप मुख्तलिफ टाइम्स पर डेटा इकट्ठा करते हैं। मसलन आपने 10 स्टूडेंट से आज डेटा इकट्ठा किया, अगले साल आपने उन सेम 10 स्टूडेंट से इकट्ठा किया, या अगले साल आपने सेम यूनिवर्सिटी से डेटा इकट्ठा किया, या अगले साल आपने इन्हीं 10 स्टूडेंट से मिलते जुलते 10 स्टूडेंट से डेटा इकट्ठा किया। तो ये अब आपकी स्टडी खत्म नहीं हुई, आपकी स्टडी अभी चल रही है, क्योंकि ये कई सालों पर मुहित थी। ऐसी स्टडी जो कई सालों पर मुहित नहीं होती, वन टाइम डेटा कलेक्शन पर होती है, वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। और वो स्टडी जो मुख्तलिफ टाइम, सालों पर या महीनों पर मुश्तमिल होती है, जो आपने मुख्तलिफ टाइम्स पर डेटा इकट्ठा करना होता है, वो जो मुख्तलिफ टाइम्स पर आपने डेटा इकट्ठा करना होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल डेटा कहलाता है। तो आपने अपनी स्टडी में ये भी डिसाइड करना होता है कि आपकी स्टडी का, आपकी रिसर्च का टाइम होराइजन क्या होगा। क्या आपकी स्टडी की डिमांड ये है कि आपने एक ही टाइम पे डेटा इकट्ठा करना है, या आपकी स्टडी की डिमांड ये है कि आपने मुख्तलिफ अदवार में डेटा इकट्ठा करना है। मसलन सपोज मैं एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं, प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद मैं उसकी टेस्टिंग करता हूं, और टेस्टिंग में एक मॉल में जाता हूं, और मॉल में मैं टेस्टिंग करके तो जो रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स की बेसिस पे अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर देता हूं। ठीक हो गया? अब ये है मेरा वन टाइम डेटा कलेक्शन, क्रॉस सेक्शनल डेटा। अब ये है कि मैं, वो मेरी स्टडी अभी खत्म नहीं हुई। एक तो ये है कि मेरी स्टडी खत्म हो गई, वन टाइम डेटा कलेक्शन की, दैट्स ऑल। अगर ये है कि मेरी रिसर्च इस किस्म की थी कि मैंने हर साल डेटा इकट्ठा किया करना है और 5 साल बाद अपनी रिजल्ट पेश करने हैं, 5 साल बाद अपनी स्टडी को खत्म करना है, या हर माह डेटा इकट्ठा करना है, 5 माह बाद मैंने डेटा जो है वो उसको असम्बल करके और फिर प्रेजेंट करना है, यानी मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में मैंने डेटा इकट्ठा करना है, देन इट वुड बी अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। होप के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए।